Assalamu alaikum. Today I have a special story for you. Once upon a time, in our little town, there were two friends, Ali and Ahmed. Okay, they love going to school. But one day, their teacher gave them a task: find the best way to come to school. अपनी पसंद का कोई सा रास्ता ढूंढकर स्कूल पहुंचना है. Ali has chosen a path full of twists, turns, and every step, at every turn, he got delayed and he felt lost. Uh-oh, when will I reach school? मैं स्कूल कब पहुंचूंगा? And he was getting worried about that. On the other hand, Ahmed has chosen a exact straight path. Exact straight path. And went to the school directly. He reached on time. There wasn't any problem. When they both reached at school, then teacher called them up and explained. And they explained, see, a straight path is much easier. Ali and Ahmed, listen to me. The straight path is much easier. You know, ये तो कुरान में भी mentioned है. इहदिना सिरातल मुस्तकीम. The straight path that guides us correctly. सीधा रास्ता जो हमें सही मंजिल की तरफ ले जाता है. From this story, ये जो मैंने आपको एक task दिया, from this task, we learn that a straight path, whether in life or in math, is always simple and a wise decision. So, in this lesson, we will discuss about gradient of straight line. I am Dure and I am giving free math lessons only on my YouTube channel Maths with Dure. Let's talk about the gradient. What is meant by gradient? Gradient, which tells us how steep a line is. So you can say steepness of a line is called slope or gradient. Imagine Ahmed's path was not just straight, also had a slight slope, like going uphill, ऊपर जाते हुए, or you can say downhill. So this slope is called gradient. Okay, I have more examples. Look at these pictures. Observe them. Just observe. The gradient or slope means what? If the path goes up slowly, the gradient is low. Just observe. Is this path going up slow? It's going up quickly. It's going up more quickly. So it means that you can observe that, you can say that increasing the height means that increasing the steepness. Or in other words, you can say decreasing the height. Decreasing the height means decreasing the steepness. All right. So basically the word gradient help us to measure how steep a line is. How can we measure it? So yes, basically we need to know how can we calculate or measure the gradient. To find the gradient, you need to have prior knowledge. You should know how to plot coordinates and you should know how to read them. That is really important point. And you should know how to plot a straight line using any gradient. Okay, let's have an example. Example number one. That is example number one. We have to find the gradient of this straight line. Okay, this straight line. All right. So there are few steps. Step number one, it says choose 2 points. And these 2 points can be any 2 points. Means what? This is basically a line. All right. So I have to choose any 2 points. Or there are many points basically. यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा points है. Collection तो बहुत सारी है. But we have to choose any two. So
दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं कौन से पॉइंट्स चूज करती हूँ, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, द पॉइंट्स विच आई कैन इजीली लोकेट. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, अगर ये जो ऑरेंज पॉइंट है, अगर मैं इसको लोकेट करूँ तो आई कैन इजीली टेक दिस वैल्यू, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, दैट इज 2. ऑल राइट, बट इफ आई वॉन्ट टू टेक दैट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लू पॉइंट, ठीक है, चलिए जी इसको लोकेट करते हैं. लेट्स लोकेट. इफ आई वॉन्ट टू लोकेट इट, तो लोकेट तो ये हो रहा है, ये दोनों के मिडिल में है, तो आई कैन से इट इज 1.5, और y एक्सिस पे ये एग्जैक्ट 4 पे है. रिमेंबर वन थिंग, हमेशा पॉइंट आप बोलें जिसमें डेसिमल नहीं हो, अवॉइड करें. बहुत मजबूरी हो, कुछ ना बचे, देन यू कैन गो विद डेसिमल्स. ओके, तो नॉर्मली डेसिमल्स आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल देते हैं. सो आई विल टेक this point as A, orange one, and I will go and take this blue point as B. Any problem till here? Okay. And I will ignore the other points. Clear? और मैंने कैसे सिलेक्ट किया, मैंने आपको बता दिया, वो पॉइंट कोई भी हो सकते थे. रिमेंबर दैट. सो इट मीन्स दैट आई कैन चूज एनी 2 पॉइंट्स. इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं सिर्फ यही वाले 2 उठा सकती हूँ, कोई भी लेंगे तो आंसर आफ्टर कैलकुलेशन विल बी सेम. ऑल राइट, so let's start working. Step number 1 says you have to choose any 2 point. वो हमने choose कर लिए A and B. ठीक है, let me remove this one, ये ताकि confuse ना करे आपको. All right, now we have to write the coordinates of these 2 points, जो selected points हैं. Coordinates कैसे लिखते हैं? I have a question. Coordinates कैसे लिखते हैं? In a bracket, and x की value will be first, and then you will write the y coordinate. Okay, the location of this point, तो I have located it already. x पे 1 है and y पे 2 है, तो I will write 2. Any problem till here? Remember one thing, जिन बच्चों को ज्योमेट्रिकल इश्यूज हैं, लाइक ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में इश्यू है, उसको, उन बच्चों को ये रिकॉल करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि हाउ कैन वी लोकेट द पॉइंट्स. ओके, हाउ कैन वी राइट द कोऑर्डिनेट्स और रीड द कोऑर्डिनेट्स. ऑल राइट, प्लॉट करने भी आने चाहिए और रीड करने भी आने चाहिए. ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी. हाँ जी, इसको देखते हैं एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है. ऑल राइट, 3. ऑल राइट, 3 आई विल राइट फर्स्ट. And y-axis पे, that is 10. So I will write 10 as a y coordinate. Remember, x coordinate, we always write it first and then we always write the y coordinate. Is there any problem? No, right? Okay, I'm going to write the same coordinates here. For further working, 1 and 2, ये a था, ये मैंने यहाँ लिख दिया. There isn't any change. Clear? And this is a b. I'm going to write b here. And that is 3 and 10. Okay. Third step is we have to apply the formula. What is the formula? Formula is basically change in y over change in x. And change we can represent with this small triangle. Change in y over change in x. आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो, और यू कैन इवन अप्लाई दिस वन ऑल्सो, राइज ओवर रन. अच्छा जी, मेरे पास ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जिनकी मैं वर्किंग जब क्रॉस चेक करती हूँ, तो आई रियली मुझे पता चलता है उसमें कि उनको ये राइज ओवर रन वाले उसमें काफी इश्यूज आते हैं. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. और इसको जरा मजीद डेप्थ में देख लेते हैं. चेंज इन वाई हम कैसे लेते हैं? वी कैन राइट चेंज इन वाई लाइक दिस, y2 माइनस y1. एंड चेंज इन, मतलब डिफरेंस इन x क्या होगा? x2 माइनस x1. ऑल राइट, ओके. रिमेंबर वन थिंग, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट ग्रेडियंट विद m. किससे करेंगे रिप्रेजेंट? विद m. Again, किससे करेंगे? With m. Yes. So basically that is the formula of slope or gradient. इसको slope भी बोलते हैं, don't forget it, और gradient भी बोलते हैं. अच्छा जी, how can I get the value of y2 and y1? तो remember, यहाँ पे आपने x और y के coordinates लिए हुए थे, दोनों points के x और y के coordinates हैं, right? तो आप इन दोनों में से किसी एक को पहले पूरा सेट ग्रुप 1 मान लो या सेट 1 मान लो. मीन्स दैट इनमें से किसी एक को कह दो कि ये कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट, इसको 1 समझ लेंगे हम और इसको 2 समझ लेंगे. तो चले, ए कम्स फर्स्ट, तो हम उसी तरह से कर लेते हैं कि वी विल से दैट इज x1 और ये y1. जिसका पहला x1 लेंगे या फर्स्ट ग्रुप मेंशन करेंगे, y सेकंड कोऑर्डिनेट भी 1 ही कहलाएगा. ठीक है, एंड दैट इज x2 एंड दैट इज y2. क्लियर यहाँ तक? रिमेंबर दैट? ओके. नाउ आई एम गोइंग टू substitute the value. So I need to write y2 first. So what is the value of y2? That is 10. I am going to substitute it, minus, and then I will write the value of y1. So y1 is 2. So I will write 2. Okay. x2, what is x2? That is 3. And what is x1? That is 1. Any problem till here? No. Okay.
नाउ द लास्ट स्टेप इज यू हैव टू सॉल्व. ओके, रिमेंबर हियर, ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है कि बच्चा बच्चा सॉल्व कर सकता है, बट रिमेंबर यू शुड बी वेरी गुड इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. मेजॉरिटी की गलती यहां पर ही आती है, और कोई गलती नहीं होती, कैलकुलेशन रॉन्ग होती है, राइट? सब्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से किया होता है, और आगे मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी हैं, तो वो इश्यूज भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे. Okay, now I will solve one by one. 10 minus 2 is 8 upon 3 minus 2 is 3 minus 1 is 2. Okay, now I will just simplify the answer. 2 ones are 2 fours are. 4 is the gradient of this line. Clear? आप में से कुछ बच्चों के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे. What अगर हम कोई और कोऑर्डिनेट b ले लेते हैं या एक इसको ले लेते हैं, तो क्या आफ्टर सॉल्विंग आंसर सेम होगा? Yes, exactly. You will get the same answer. That's why I mentioned here any 2 points. कोई भी पॉइंट्स लेते हैं, चाहे बहुत नेगेटिव नंबर्स के साथ ले लें, चाहे पॉजिटिव नंबर्स के साथ ले लें, इट्स अप टू यू. ठीक है? ओके, वी हैव मोर क्वेश्चंस, मोर एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द ग्रेडियंट. ओके, हियर आई हैव नॉट रिटन एनी स्टेप. व्हाट इज द स्टेप 1? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द स्टेप 1? वी हैव टू चूज एनी 2 पॉइंट्स. ओके जी, पॉइंट्स चूज करें, और पॉइंट्स चूज करने के लिए आई टोल्ड यू कि हमेशा से वो नंबर्स लें जो आपको बहुत इजी रखें, राइट? डेसिमल में नहीं जाना. ऑलराइट, ओके, मैं एक ये ले रही हूँ, और क्या लूँ? ये वाला लूँ? नो, इट्स इन मिडल, सो दैट इज अ बैड चॉइस. तो मैं कुछ और चूज करूंगी. कुछ और में ये ले लेते हैं, ताकि जरा हमें डिफिकल्टी लेवल हमारा बढ़ जाए और हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर हो जाए. ठीक है? तो आई विल से दैट इज पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी. Any problem till here? No. Okay. Now I will write the coordinates. Means you have to locate these points. Can you locate these points? अब आपको पता है आपको इसके लिए एक वैल्यू x की चाहिए और एक y का कोऑर्डिनेट चाहिए. So you need to locate that point कि x एक्सिस पे इसके सामने कौन सा नंबर है. That is 3. You will write 3. Any problem till here? Okay. Now इसी को लोकेट करें एंड चेक करें इसके सामने y एक्सिस पे. Can you observe कि ये y एक्सिस पे है ना? So it means that you have to write the coordinate of y-axis. That is -3. Remember, this time we are working with negative numbers, okay? -3. All right, it's done. Now I'm going to write the coordinates of b. b के coordinates क्या है? Let's locate. 1, x-axis का 1 and y का भी 1. दोनों का 1 है. So it means that 1 and 1. Any problem till here? No. Okay. Third point, we have to apply formula. तो उससे पहले we have to choose, we have to fix कि कौन सा नंबर, कौन सा ग्रुप पहला होगा और कौन सा सेकंड होगा. किसको पहला कहें, किसको सेकंड कहें? चलिए इसको पहला कह देते हैं और इसको सेकंड कह देते हैं. इस दफा उल्टा कर देते हैं. मीन्स आई एम राइटिंग बी 1 and 1, और इसके जो x और y की वैल्यूज है हम कंसिडर करेंगे, ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है. क्लियर? नाउ आई एम राइटिंग a, दैट इज 3 and -3. तो इसकी x की जो वैल्यूज है ये सेकंड सेट है. कोई प्रॉब्लम टिल हियर? नो. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फॉर्मूला, change in y, y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, I'm going to write it. M equals to, M means gradient, equals to change in y over change in x. और इसमें हमेशा remember one thing, बहुत जरूरी point है, you will write y2 first, then you will subtract the y1. Clear? और अगर आपने एक ग्रुप के x को x1 लिया, पहले लिया, तो उसके y को भी 1 ही लेंगे. ये नहीं हो सकता कि आप y इसका 1 ले लें. क्लियर? ये वो वाली मिस्टेक्स है जो नॉर्मली बच्चे पेपर में कराते हैं. ओके, ऑल राइट. नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. y2 इज व्हाट? नाउ यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. y2 इज नॉट अ सिंपल 3, इट इज -3. तो इंटीजर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट. -3. ऑल राइट. नाउ व्हाट इज y1? दैट इज 1. ओके, ये माइनस का फॉर्मूला का माइनस आया, और आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1. ऑल राइट, दैट वाज प्रीटी इजी, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल चीज आ नहीं रही अभी. ओके, x2, वेयर इज x2? 3 upon 3 minus, and x1 is again 1. Fourth point, we have to solve it. We have to apply the all rules of integers. Okay, solve it. -3 minus 1, same signs, right? Add them, 4 आ गया. Or keep the same sign, you have to add it and keep a same sign with answer. Any problem? No. Okay, now 3 minus 1, that is pretty simple. 2. Now you can do the cancellation to get the answer. 2 1s are, 2 2s are. So the answer is -2. वैसे भी ये डाउनवर्ड स्लोप थी, तो ये वैसे भी नेगेटिव ही होनी थी. रिमेंबर दैट. अच्छा, एक दफा फिर बता दूं
कि अगर कोई और पॉइंट्स भी आप लेते, फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज द कलर टू एक्सप्लेन यू, आप ये पॉइंट लेते या ये भी पॉइंट लेते, तो रिमेंबर दैट आपका आंसर तब भी -2 ही आएगा. ऑल राइट, ओके, लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल. Straight line, downward slope. Let's have a fun. Step 1, we have to choose any 2 points. मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ पॉइंट्स को. अब आप कोई भी चूज कर लें. और मैंने वो वाले पॉइंट्स चूज किए हैं या मार्क किए हैं जिनकी x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज बहुत एग्जैक्ट है, क्लियर है, कोई पॉइंट्स में नहीं आ रही, राइट? तो ऐसा करते हैं, वी विल चूज देम. एक ले लेते हैं, दोनों मुश्किल वाले ले लेते हैं, राइट? It's C, it's D. Okay, look at the points of C. X-axis 2 and y-axis -2. So I will write x coordinate first and then -2 as a y coordinate. Any problem till here? No. Good. Okay, now D. Let's locate this point. D, 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 D. 3. X coordinate is 3 and y coordinate is -4. मैं ये मुश्किल खुद से ले रही हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. आप इससे ऊपर वाले पॉजिटिव पॉइंट्स भी ले सकते हो. वेल, ओके, हमने पॉइंट्स ले लिए, इट्स डन. अब कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, इट्स डन. Now we have to apply the formula. So what is the formula? Formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1. I'm going to write these points here. मैं points लिखने जा रही हूँ. C is 2 and -2. D is 3 and -4. क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया. अभी मैंने जस्ट ये कोऑर्डिनेट्स जो मैंने यहाँ पे रीड किए थे, लोकेट किए थे, यहाँ पे लिख दिए, राइट? अब इसमें से किसी भी एक को x1 y1 कह दें और किसी भी दूसरे को x2 y2 कह दें. चले मैं इसको x1 y1 कह देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको x2 और y2 कह देती हूँ. जस्ट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि जिसके एक कोऑर्डिनेट को सेकंड सोचा उसका सेकंड कोऑर्डिनेट भी सेकंड ही होगा, राइट? नाउ इट्स अ टाइम टू सब्स्टिट्यूट. -2, we will substitute -2 instead of y2. -2. What is y1? -4. Now it's important to understand, ये माइनस का साइन फॉर्मूले का था, लेकिन ये पूरी वैल्यू मेरे पास माइनस की है, तो आई विल पुट अ ब्रैकेट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. क्लियर? यही मेन मिस्टेक्स होती हैं. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, राइट? नाउ y x2, what is x2? 2. I will write 2 here. Okay, and minus what is x1? That is 3. I will substitute 3. जी, फॉर्मूला अप्लाई हो गया? जी, हो गया. दैट्स ग्रेट. एट द फोर्थ स्टेप वी हैव टू सॉल्व. अब सॉल्व कैसे करना है? इंटीजर्स के साथ. तो जस्ट ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट. माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 प्लस 4. 2 minus 3, क्या आएगा 2 minus 3? एक प्लस का है, एक माइनस का है, टू डिफरेंट साइंस. तो क्या करेंगे? यू विल डू द सब्ट्रैक्शन. ठीक हो गया, सब्ट्रैक्ट किया. 3 minus 2 इज गिविंग यू द वन आंसर. बट साइन कौन सा आएगा? यही गलती होती है बार बार. रिमेंबर दैट साइन विल बी जी, बिगर नंबर के साथ जो साइन है वो आएगा. ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमरेटर. टू डिफरेंट साइंस, डू सब्ट्रैक्शन. 4 minus 2 इज गिविंग यू 2. साइन कौन सा आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ था? इट विल बी प्लस. क्लियर? -1. अब जब -1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली माइनस ही आंसर देगा. तो आंसर इज -2. मीन्स दैट स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज, दिस लाइन इज -2. मीन्स स्टीपनेस ऑफ दिस लाइन, राइट? लेट्स सॉल्व लास्ट एग्जाम्पल. आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है? फर्स्ट स्टेप, आई एम नॉट राइटिंग द स्टेप नाउ. रिकॉल क्या स्टेप्स हैं जी? वी हैव टू टेक, चूज एनी 2 पॉइंट्स. कौन से लें? 1, लेट्स टेक दिस एज E, पॉइंट E. एंड सेकंड वन कोई से दो, कोई से दो. चलें जी, ये ले लेते हैं. F टेकन. सेकंड कोऑर्डिनेट्स. जी, कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर लेंगे अब. कैन यू डू इट? बताइए. ओके, यस वी कैन डू इट. इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 and the y coordinate is -4. 1 and -4. Any problem? No. Good. And let's locate F. X coordinate is 2. That is 2. And y coordinate is -7. Okay. I'm going to write these points here. E is 1 and -4. मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ लिख रही हूँ. ठीक है? For my comfort. Otherwise आप इसके ऊपर भी यही काम कर सकते हैं, right? And now I'm going to write this F here. F 2 and -7. Any problem till here? जब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर आगे भी नहीं होगी इंशाल्लाह. ओके,
Now we have to apply a formula. Let's apply. M equals to y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब आपने इसमें से किसी एक को फर्स्ट सेट बनाना है और दूसरे को सेकंड सेट बनाना है. इसको बना लेते हैं हम फर्स्ट x1 एंड y1. इसको बना लेते हैं सेकंड x2 एंड y2. Any problem? No. Good. Now we will substitute minus 7. y2 की जगह क्या आएगा? Minus 7. So I will substitute minus 7. And sign of this formula will come as it is. y1 क्या था? y1 है -4. अब कई बच्चे इस माइनस के साथ कंफ्यूज करके यहाँ पर सिर्फ 4 लगा देते हैं, तो वो उनका आंसर, कैलकुलेशन, सारी एफर्ट्स गलत हो जाती हैं. So you have to put a bracket and write -4 instead of whole y1. Clear? Good, 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 good. Okay, let me erase G. Now, what is x2? x2 is pretty simple. That is 2 क्योंकि माइनस नंबर इन्वॉल्व नहीं है. Minus and x1 is 1. Now we have to open the bracket. Clear? So it will be -7 plus 4 upon 2 minus 1 is giving us 1. Okay, now we will solve this numerator. -7 and plus 4 integers हैं, add और subtract हो रहे हैं. क्या करेंगे? Two different signs हैं, तो subtract करें. 7 minus 4 will give you 3. Clear? Or sign of bigger value will be with the answer. Clear? So the answer is -3. -3 over 1 means -3. ठीक है? Okay. जी, it's all done. But I want to give you a task. Task is कि you have to choose कोई से भी 2 different points. जैसे कि ये भी एक point निकल रहा है. There are many points. That is also a point. तो कोई से भी 2 different points लेकर ये formula apply करके with this method just match the answer. अगर answer same आता है, so please give your answer in the comment section. Assalamu alaikum.